Hello everyone, I am Ritika Juzgar, Assistant Professor IT Department. So in Unit 5, we discuss about distance-based model. Okay, so where we already cover the topic what is mean by distance-based model, what are the types are present in distance-based model, then clustering and K means clustering also. Okay, so in clustering, clustering is divided into the two types, that is K means clustering and the hierarchical clustering. Okay, so in previous video we already covered the topic, that is K means clustering. The second type of clustering is what the hierarchical clustering. So in this video we discuss about what is mean by hierarchical clustering and the types of hierarchical clustering. Okay, so let us discuss. So hierarchical clustering is another unsupervised machine learning algorithm which is used to group the unlabeled dataset into a cluster and also known as a hierarchical cluster analysis or a HCA. Okay. So सुपरवाइज मशीन लर्निंग के कौन से टाइप्स है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग के कौन से टाइप्स है? So clustering, K-means clustering, hierarchical clustering is a type of unsupervised machine learning. वैसे supervised machine learning के कौन से types है? Yes. Sorry, what? Neural network? No. Yes, regression and classification are the types of a supervised machine learning. और unsupervised machine learning के type से Clustering and aggregation. ओके, सो क्लस्टरिंग के अंदर के मींस क्लस्टरिंग है, हिरार्किकल क्लस्टरिंग है, और एग्रीगेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसका रिलेशनशिप दिखा के हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं, मींस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप. Okay, so this is the unsupervised machine learning. So hierarchical clustering is also the unsupervised machine learning algorithm which is used to group the unlabeled data set. Supervised machine learning के अंदर क्या था, लेबल डेटा हमारे पास गिवन था, उसके ऊपर हम क्या करते थे, प्रेडिक्शन करते थे. बट अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या है, अनलेबल्ड डेटा मीन्स हमने उसको कुछ लेबल नहीं किया है डेटा सेट को. So this is a work. So this unsupervised machine learning is used for the unlabeled data set into a cluster and also known as a hierarchical clustering analysis, that is a HCA. So in this algorithm we develop the hierarchy of clusters in the form of a tree. Hierarchy means what? Tree like structure. ये तो पता है आप लोगों को. रूट नोड होगा, देन सब ट्री होगी, देन उसकी सब ट्री होंगी और लास्ट वाले होंगे लीफ नोड. सो हिरार्की मींस फर्स्ट नोड टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड. ओके, सो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, ट्री लाइक जो भी स्ट्रक्चर होगा. सो दिस इज अ हिरार्किकल क्लस्टरिंग. सो हियर वी डेवलप द हिरार्की ऑफ क्लस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री and this tree shaped structure is known as a it is known as a dendrogram. जो कि tree shaped structure होगा, this is called as a dendrogram. सो जो भी हमने के मींस क्लस्टरिंग लर्न किया था, सेम हमारा हिरार्किकल क्लस्टरिंग होगा. ओके, अगर हम के मींस क्लस्टरिंग का वर्किंग और हिरार्किकल क्लस्टरिंग का वर्किंग देखेंगे, सो दोनों का वर्किंग सेम होगा. बस ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हिरार्की के अंदर हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं. ट्री लाइक मीन्स कैसे होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले रूट नोड होता है. ओके, रूट नोड होता है, देन उसके सब नोड्स, ओके. अगर ये ट्री की अगर बात करते तो इसके दो लीफ नोड्स होंगे,
सो ये क्या है, रूट नोड है, ये इसके सब नोड्स है, सब ट्री, और देन ये लीफ नोड्स है, लास्ट वाले लीफ नोड्स है। सो इस तरह से हमारा डेटा सेट अरेंज होगा, ओके, ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में। So the hierarchical clustering technique has the two approaches. The first is the agglomerative and the divisive. Okay, so agglomerative is a bottom-up approach in which the algorithm start with taking all the data points as a single cluster and merging them until one cluster is left. ओके, सो नॉर्मली हम यहाँ पे जो के मींस क्लस्टरिंग यूज करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट होते थे, देन हम उसको क्या करते थे, ग्रुप करते थे। ये ओके, सो यहाँ पे देखो ग्रुप किया है, ये ग्रुप, ओके। सो सिमिलरली अगर हम के मींस क्लस्टरिंग और हिरार्किकल क्लस्टरिंग देखेंगे, सो इसका वर्किंग सेम होगा, बस यहाँ पे हम हिरार्की स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा हमारा। सो agglomerative is a bottom up approach, okay, bottom up approach means like this. Okay, so this is the agglomerative hierarchical approach, and then next is a divisive. Divisive algorithm is a reverse of agglomerative algorithm, that is the top to bottom approach, top down approach. क्यों चला गया? Okay, so यहाँ पे in which the algorithm start with taking all data points as a single cluster, means वो क्या करेगा, सिंगल क्लस्टर, ये एक सिंगल क्लस्टर होगा, ये एक सिंगल क्लस्टर होगा, ये एक सिंगल क्लस्टर। अगर मैं यहाँ पे और एक कंसीडर करती हूँ, तो यहाँ पे सिंगल क्लस्टर्स कितने हैं, लास्ट में सिंगल ही है ना, यहाँ पे एक फर्स्ट वाला सिंगल क्लस्टर, ये फर्स्ट सिंगल क्लस्टर, ये सेकंड सिंगल क्लस्टर है, ये थर्ड है, मींस ये डिपेंड है क्या किसी के ऊपर, नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सो ये सिंगल क्लस्टर्स एंड मर्ज देम अंटिल वन क्लस्टर इज लेफ्ट। सो हमें क्या करना है, ये दोनों को मर्ज करेंगे, सो ये फॉर्म होगा, ओके। सो दिस इज अ 1 2, ओके। ये दो क्लस्टर को मर्ज करेंगे, सो ये क्लस्टर फॉर्म होगा 3 4, ओके। सो दिस इज अ agglomerative in which the algorithm start with taking all the data points as a single cluster and merging them until one cluster is left. जब तक के एक ही क्लस्टर लेफ्ट नहीं होता तब तक के हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करेंगे, ओके। सो डिविजिव क्या है, उसके रिवर्स है, मींस वो स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर हम डिविजिव की अगर बात करते हैं तो दिस इज अ एग्लोमरेटिव, और अगर डिविजिव की बात करते हैं, सो ये वाले की अगर बात करते हैं, सो स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल क्लस्टर, ओके, देन उसका मर्जिंग होगा, यहाँ पे ये वाला मर्जिंग, ये वाले पॉइंट्स होंगे, और फिर वो उसको सेपरेट करेगा, ओके, ऐसे। सो नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। सो यहाँ तक समझ में आया हिरार्की का क्लस्टरिंग क्या होती है। सो व्हाई वी यूज दिस हिरार्किकल क्लस्टरिंग, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, सच एज द के-मींस क्लस्टरिंग, ओके। सो व्हाई वी नीड द हिरार्किकल क्लस्टरिंग, so we have seen in the k-means clustering there are some challenges with this algorithm, so which are predetermine the number of clusters, okay। हमें प्रीडिटरमाइन करने पड़ते हैं k की वैल्यू को, k इक्वल टू 2 है, सो 2 नंबर ऑफ क्लस्टर्स मींस 2 ग्रुप हम कंसीडर मींस क्रिएट करेंगे। k इक्वल टू 3 है, सो 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स को हमें यूज करना है या फिर डिराइव करना है। सो इन दिस k-means algorithm, k-means clustering, we require the predefined number of clusters and it will always tries to create the clusters of the same size, okay, same size का ही हमें create करना पड़ता है। So to solve this type of challenge, we can use the hierarchical clustering algorithm.
So in this algorithm, we don't need to have knowledge about the predefined number of clusters. हमें predefined करने की जरूरत नहीं होती है कि k की वैल्यू को set k equal to 2 3 है so on. Okay. So here we discuss this hierarchical clustering without using the predefined number of clusters. So here we discuss this hierarchical clustering without using the predefined number of clusters. So by using agglomerative and divisive, we can solve the hierarchical clustering type problem. So we will discuss the agglomerative hierarchical clustering first. So in this type of clustering algorithm, to group the data set into the clusters, it follows the bottom up approach. Okay, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को. So it means bottom up approach means what? This algorithm consider each data set as a single cluster at the beginning and then start combining the closest pair of the cluster together. Okay. So ये क्या है? सिंगल क्लस्टर पहले कंसिडर करेगा जैसे मैंने पेन के अंदर एक्सप्लेन किया था और फिर वो चेक करेगा कि उसके सिमिलर जो क्लोजेस्ट वाला जो नोड है वो सिमिलर है क्या इससे. अगर सिमिलर है तो इसका ये ग्रुप करेगा. ओके. सो ये फर्स्ट क्लस्टर, देन इसको फिर से वो ग्रुप करेगा और देन अगेन ग्रुप करेगा. मीन्स ये दोनों का एक ग्रुप होगा, देन ये तीनों का एक ग्रुप होगा और ये होल ग्रुप होगा. ओके. So it does this until all the clusters are merged into a single cluster. So ये जो पूरे 4 है उसको हमने एक ही क्लस्टर के अंदर कंसीडर किया है. सी हियर ब्लू के अंदर ही हमने उसको कंसीडर किया है. So कब तक की हमें करना है ये? It does this until all the clusters are merged into a single cluster that contains all the data set. एक ही क्लस्टर के अंदर हमारा पूरा डेटा सेट होगा. So this hierarchy of cluster is represented in the form of a dendrogram. So dendrogram means what? ये जो स्ट्रक्चर है इसके जैसा वो दिखना चाहिए. Okay. So here we are assigning each point to an individual cluster. So there are 4 data points: red, blue, pink and green. Okay. So we will assign each of these points to a सिंगल क्लस्टर. रेड वाला एक सिंगल क्लस्टर है, पिंक वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला. सो देन एट ईच इटरेशन, फर्स्ट वाला इटरेशन, देन सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन. So at each iteration we merge the closest pair of clusters and repeat this step until only one single cluster is left. So हमने पहले इसको merge किया. So ये एक cluster हो गया. So ये cluster होने के बाद इसका नियरेस्ट कौन सा है क्लस्टर? ये दोनों को मर्ज करने के बाद ब्लू वाला नियर होगा या ग्रीन वाला नियर होगा? ओके, ग्रीन वाला नियर होगा. सो हमने इसको फिर से क्लस्टर किया. ओके, देन ये क्लस्टर फॉर्म होगा, ग्रीन वाला एक टोटल क्लस्टर फॉर्म हो गए हमारे पास. सो इसके नेबर एक ही है, दैट इज ब्लू. सो ये पूरा एक क्लस्टर बन गया. ओके, इस तरह से हम उसको हिरार्की में कन्वर्ट करेंगे. सो हियर वी आर मर्जिंग द क्लस्टर्स एट ईच स्टेप. So this type of clustering is called as a hierarchical clustering or a agglomerative hierarchical clustering. Clear? Understood? आया समझ में? So how this algorithm works? So step 1, create each data points as a single cluster. So here, then step 2, take 2 closest data points or clusters and merge them to form one cluster. Step 3, again take the 2 closest cluster and merge them together to form one cluster. Step 4, repeat step 3 until only one cluster left. And step 5, once all the clusters are combined into one big cluster, develop the dendrogram to divide the clusters as per the problem. Okay, so this is the algorithm for this agglomerative hierarchical clustering. Okay, so let us discuss one example here. So first step is what? Create the data points as a single cluster. So we are having the n data points here, n number of data points. Then step 2 is what? Take 2 closest data points or a clusters that merge them to form one cluster. Okay. So पहले हमारे पास n number of clusters थे, 1 2 3 4 5 6. So next time हमारे पास कितने number of clusters होंगे? 6 minus 1, that is n minus 1 5.
5 क्लस्टर्स होंगे. सी हियर 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे. नेक्स्ट टाइम कितनी होंगे? 5 माइनस 1 4. 1 2 3 4 ऐसे वो कम होते जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आता तब तक. Okay, so again take the two closest clusters and merge them together to form one cluster, that is n minus 2. Then repeat step 3 until only one cluster is left. So we will get the following cluster here. Okay, जब तक कि एक cluster form नहीं होता तब तक के. Okay, so यहाँ पे then यहाँ पे 3 then 2 और 1. So एक cluster यहाँ पे form हो गई. So once all the clusters are combined into the one big cluster, so develop the dendrogram to divide the cluster as per the problem. Okay, so ये हमारा algorithm है. So same जैसे यहाँ पे बताया था, एक एक को हम combine करेंगे, then इसको combine करेंगे, so last में क्या बनेगा? एक ही cluster बनेगा हमारा. Okay, so this is the agglomerative hierarchical clustering. So next is what? The divisive hierarchical clustering. तो ये क्या होगा? ऑपोजिट होगा, जिसके अंदर पहले हम एक क्लस्टर से स्टार्ट करेंगे अप टू द लीफ नोड्स. ओके, एक क्लस्टर हमने कंसिडर किया है, देन उसको हमें ऐसे करना है जैसे यहाँ पे था ऑपोजिट. ओके, इसके ऑपोजिट. So divisive hierarchical clustering works in opposite way to the agglomerative hierarchical clustering. So instead of starting with n clusters, start with a single cluster. यहाँ पे हमने क्या किया था? n number of cluster consider किए थे. यहाँ पे एक ही cluster होगा and assign all the points to that clusters. So this is also known as a top-down approach. So this algorithm also does not require to pre-specify the number of clusters. यहाँ पे हमें कितने number of clusters specify करने की जरूरत नहीं है. Okay, k की value को assign करने की जरूरत नहीं है. So this top-down clustering requires a method for splitting a clusters that contain the whole data and processed by splitting the clusters recursively until data have been split into the singleton cluster. Okay, जब तक कि singleton cluster नहीं होता तब तक कि हमें क्या करनी है? प्रोसेस रिपीट करनी है. सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेटा दिए हैं हमारे पास? 4 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए हैं. सो यहाँ पे 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं. सो हमें थाउजेंड्स जो भी डेटा सेट है उसको एक ही क्लस्टर में कंसिडर करना है. एंड ईच इटरेशन वी स्प्लिट द फारदेस्ट पॉइंट जो भी होगा. तो ये वाला जो क्लस्टर है पूरा, ठीक है, सो ये जो इसके क्लोजेस्ट पॉइंट्स कौन से? ये तीनों क्लोजेस्ट पॉइंट है, ये फारदेस्ट पॉइंट है. सो इसको एक क्लस्टर में डालेंगे, रिमेनिंग को 3 सेम रखेंगे. सो ये 3 सेम क्लस्टर के अंदर अगर फॉर्म हो रहे हैं, सो ये तीनों में से फारदेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा, जैसे हमने एग्लोमरेटिव के अंदर किया था उसके रिवर्स करना है. सो इसको क्या करेंगे? डिफरेंट क्लस्टर में डालेंगे. सो देन ये दो एक क्लस्टर में फॉर्म होंगे. अगर ये दो भी क्या है? अगर दूर दूर है, सो ये एक अलग से क्लस्टर होगा और ये एक अलग से क्लस्टर होगा. जैसे हम ऑपोजिट होगा, यहाँ पे क्या करते थे? क्लोजेस्ट पॉइंट को क्लस्टर करते थे. यहाँ पे क्या करना है? जो फारदेस्ट वाले पॉइंट है पहले उसको हम सेपरेट आउट करेंगे. ओके, सो दिस इज द डिविजिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग. ओके, यहाँ पे देखो PQRST है, देन इसको हमने डिवाइड किया है, देन इसको अगेन डिवाइड किया है. सो ये डिविजिव मेथड होगी. ओके, और अगर एग्लोमरेटिव मेथड करना है सो हमारे पास PQRST हो गए. उसको हम ये दोनों को, अगर ये नियर वाले हैं सो इसको एक क्लस्टर में डालेंगे, ये नियर वाले हैं सो इसको एक क्लस्टर में, इसके नियर R भी है सो इसको क्लस्टर करेंगे और फिर सबका मिला के एक क्लस्टर. ओके, सो यहाँ पे भी देखो ये
यहाँ पे भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है। सो डेंड्रोग्राम मीन्स व्हाट, जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डेंड्रोग्राम होगा, एग्लोमरेटिव के लिए भी और डिविजिव के लिए भी है। ओके, सो डेंड्रोग्राम मीन्स व्हाट, जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डेंड्रोग्राम होगा, एग्लोमरेटिव के लिए भी और डिविजिव के लिए भी है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द वर्किंग ऑफ दिस डेंड्रोग्राम इन हिरार्किकल क्लस्टरिंग। So dendrogram is what? It is a tree-like structure that is mainly used to store each step as a memory that the HC algorithm performs. Hierarchical clustering algorithm performs. So in the dendrogram plot, the y-axis shows the Euclidean distance between the data points and the x-axis shows all the data points of the given data set. Okay, y-axis के ऊपर होगा distance between the data points and x-axis shows all the data points of the given data set. कितने number of data points है वो सारे हम x-axis के ऊपर show करेंगे। data set होंगे हमारे और ये Euclidean distance, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम y एक्सिस के ऊपर मेंशन करेंगे। So in this diagram, the left part is showing how the clusters are created in agglomerative clustering, and the right part shows the corresponding dendrogram. So यहाँ पे क्या किया है, agglomerative यूज किया है, ओके, क्लस्टरिंग, और उसका डेंड्रोग्राम कैसे होगा, इस तरह से होगा। So see here, पहले हमारे एक एक पॉइंट होंगे यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, P6। सो हमने इसको क्लस्टर किया, फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर, फोर्थ क्लस्टर एंड फिफ्थ क्लस्टर। ओके, सो ये क्लस्टर किया है और उसका डेंड्रोग्राम कैसे होगा, इस तरह से होगा। सो पहले P1, P2, P2, P3 होगा। ओके, P2, P3 का एक क्लस्टर है, देन P1, P2, P3 का एक क्लस्टर है। ओके, सेम यहाँ पे देखो P6 एंड P5 का एक क्लस्टर है, देन P4, P5, P6 का एक क्लस्टर है, और सबका मिला के ब्लू जो है वो पूरा एक क्लस्टर है। ठीक है, सो ऐसे हम क्या करेंगे, डेंड्रोग्राम जनरेट करेंगे हिरार्किकल क्लस्टरिंग। सो ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था एग्लोमरेटिव के अंदर, कि ये वाले एग्जाम्पल में, ओके, सो नियर वाले पॉइंट अगर ये कंसिडर करते हैं, ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे सो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होंगे हमारे, ये इसको प्लॉट करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ पे P1 होगा, वेट, ये यहाँ पे P1, P2, P3, P4 होंगे। सो ये वाला P1 इसको हम प्लेस करके रखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये जो दो पॉइंट्स है मिनिमम डिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ये ब्लू पॉइंट में कंसीडर करती हूँ, तो ये पॉइंट का और ऑरेंज पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का और ये ग्रीन पॉइंट का डिस्टेंस, सो मिनिमम डिस्टेंस किसका है, इसका डिस्टेंस मिनिमम है। सो ये दोनों का डिस्टेंस अगर 3 है और ये दोनों का डिस्टेंस अगर 5 है, सो यहाँ पे 3 वाला डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे मिनिमम। ठीक है, सो ये होगा 3 डिस्टेंस होगा और ये 5 वाला डिस्टेंस। तो ये वाले एग्जाम्पल के अंदर सेम P2 और P3 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। ओके, सो इन दोनों का डिस्टेंस अगर मिनिमम है, सो ये अगर डिस्टेंस है हमारा 2 और ये अगर डिस्टेंस है अगर 5, सो P2 और P3, सो यहाँ पे देखो 2 किया है, मीन्स ये वाला जो है ट्री वो कम दिखनी चाहिए, छोटी दिखनी चाहिए ना P2 और P3 की। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 5 कंसिडर किया है P2 और P3 का यूक्लिडियन डिस्टेंस। और अगर P2 और P3 का एक क्लस्टर है, तो ये वाला क्लस्टर का डिस्टेंस और P1 का डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना है, 10 है, 9 to 10 आ रहा है। सो यहाँ पे ऐसे यूज किया। ठीक है,
ओके, सो ये क्लस्टर रेड वाला एक क्लस्टर फॉर्म किया है और ये क्लस्टर हमने फॉर्म किया है, मीन्स दो क्लस्टर्स फॉर्म हुए हैं। इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होगा सो वो इस तरह से वो ट्री जनरेट करेगा 25। थैंक यू।